Yes, welcome all of you in Gyan Video channel। खेत श्री सुषमा काफी आर्ट संस्कृत महाविद्यालय जसवंतगढ़ में आप लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। विद्यार्थियों 11th क्लास का इंग्लिश कंपलसरी का जो लास्ट सेशन है 8 नंबर का टेल ऑफ डायवर्सिटी। Right, it is a new course nowadays। NCERT course have been implemented in Rajasthan state also। So we are going to read the story Vikram Seth, the tale of the diversity। It is the lesson number 8। First of all, we should know Leela Seth। Who is Leela Seth? Vikram Seth। Yes, Leela Seth के ही पुत्र हैं, कोई रॉन्ग नहीं है। Leela Seth, who is Leela Seth? First of all, you know about Leela Seth। Leela Seth was the first female chief justice in India। जो सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस होते ना, मुख्य न्यायाधीश, उसके अंदर पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी ये लीला सेठ। और लीला सेठ की ही लड़की कौन थी? विक्रम सेठ थी। और विक्रम सेठ कंपोज एंड रॉट दिस एसे। विक्रम सेठ was born in 20 June 1932। He was born in 20 June 1932 in Calcutta। His father worked in a Bata company, and he went to London and stayed for a long time in London, and he studied in United Kingdom। Before United Kingdom study, he studied in a Dul College, Dehradun। देहरादून के जो दुल कॉलेज है उसके अंदर इन्होंने भी अध्ययन किया था, और यूनाइटेड किंगडम स्टेट के अंदर भी जाकर उन्होंने अध्ययन किया था। कई वर्षों तक लंदन में भी रहे थे। 20 जून 1932 को इनका जन्म हुआ था कलकत्ता के अंदर। और इनकी माता जो पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थे लीला सेठ, उनके ये पुत्र थे विक्रम सेठ। विक्रम सेठ गोल्डन गेट नोवेल इज वेरी पॉपुलर इन इंग्लिश लिटरेचर। He is known the writer and poet of Golden Gate। Golden Gate नोवेल है जो 1986 में पब्लिश हुआ था। वेरी पॉपुलर नोवेल इन इंग्लिश लिटरेचर। A suitable yarn and equal music is also significant works of Vikram Seth। तो इस इंट्रोडक्शन I have told you the introduction to Vikram Seth। But now I am discussing the story, the tale of the diversity। The story is related to, we can say that the story has been taken from the Maclean। पॉइंट मैपिंग है उससे इसको डिराइव किया गया है। In this story, the whole story rotates around the king। The role of king is very important and significant in this story। The king is very just and clever। वो बहुत ही न्यायप्रिय और शांत प्रिय था। just and clever। He was just and clever king। The role of king is very important in the story। The whole story rotates around the king। उसके चारों तरफ रिवॉल्व करती है और वो राजा का जस्ट एंड कैलिस। जस्ट का मतलब बच्चों होता है न्यायी, बहुत ही न्यायी प्रिय था राजा था। वी कैन से दैट इन दिस स्टोरी ही वाज ए क्रेजी किंग। क्रेजी जानते हो? क्रेजी राजा था। ही वाज ए क्रेजी किंग, क्रेजी एंड मूडी। ही वाज क्रेजी एंड द रोल ऑफ किंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस स्टोरी। So we can say that the king was just and clever and he was moody and crazy in this story। He is a whimsical। whimsical जानते हो? कंट्री को बोलते हैं whimsical। whimsical। He was a whimsical, crazy, moody and just। वो राजा बहुत ही न्यायप्रिय था और संकीर्ण था, whimsical था। And the story is actually, we can say that he was a fiscal minded and unstable। fiscal
narrow-minded person, we can say that he was a very narrow-minded person. Fiscal, जिसको राजकोषीय बोलते हैं, fiscal and a unstable. He was a unstable माने अस्थिर राजा था. Unstable, अस्थिर. ओके, अस्थिर और fiscal minded का मतलब होता है थोड़ा सा क्या बोलते हैं जिसको ऊपर छिछला आदमी बोलते हैं. narrow minded person छिछला आदमी था and unstable था, difficult था, crazy था, moody था, palace और just राजा था. And his palace nature became the cause of his death. और उसका जो न्याय जो था या उसका जो सनकी नेचर था, वो सनकी नेचर होने के कारण ही कहानी के अंत में उसकी मौत का कारण ही बनता है. तो एक राजा को एक सनकी नहीं होना चाहिए, शार्प माइंडेड होना चाहिए. देखिए बच्चों, मैं इस कहानी को शॉर्टकट में आपको बता देता हूँ. बोथ लैंग्वेज हिंदी एंड इंग्लिश में. ओके, फर्स्ट एंड ऑल वी कैन से दैट विक्रमसेन wrote this the tale of the Nirantari. Vikramsen was born in 20 June 1932 and now he is at present he is alive and he is son of Leela Seth. Leela Seth was the first female chief justice in India and his father was a businessman. Bata company, he used to work in a Bata company and Vikramsen went to London. He stayed for a long time in London and he studied in the United States of Kingdom. But before United of Kingdom, he studied in a good college, Calcutta. In this story, the role of the king is very important in this story. The king is a difficult and moody and crazy person. He is a fickle-minded and a unstable and a moody and crazy and thus and palace king. The whole story revolves around him. सारी कहानी इसके बच्चों क्या है घूमती है. देखिए, राजा ने एक बार क्या हुआ था, कोई द्वार बनाया था, गेट बनवाया था और उस गेट का नाम तो नहीं है, आर्च बनवाया था. इसको पर मेहराब बोलते हैं. एक आर्च का ऑर्डर दिया था, मेहराब. आर्च उसको बोलते हैं आर्च. द किंग ऑर्डर्ड टू मेक ए आर्च इन हिज किंगडम. We know very well he was a crazy person, he was a just and selfish person and he ordered to make a art. उसने आर्ट बनाने का एक प्रोक्लेम किया, ऑर्डर किया. तो भाई जब राजा ने अगर ये आर्ट बनाने का ऑर्डर दिया तो सबसे पहले कौन आएगा, बिल्डर आएगा. तो उस बिल्डर ने क्या किया, आर्ट का बनाने का आदेश कर दिया. भाई राजा का आदेश, रॉयल डिक्री का आदेश, रॉयल डिक्री का ऑर्डर है. तो उसने क्या किया, उस बिल्डर ने आर्ट बनवा दिया एंड किंग passed under the arch and his crown had fallen on the ground. But king became very furious, he became very angry when his crown fell on the ground. जब उसका मुकुट बच्चों जमीन पर गिर गया, he became very proud. तो बहुत ही क्या हुआ, क्रोधित हुआ. और इस डिस्ग्रेस का मतलब होता है अपमान. इस अपमान के लिए उसने ही ऑर्डर इमीडिएटली टू किल द बिल्डर. उसने राजा को मारने के लिए आदेश दिया कि इसको मरवा दिया बिल्डर को, क्योंकि बिल्डर का रोल है. उसने उस आर्ट का इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाया है जिससे राजा का राज क्या हो गया, तो जमीन से गिर गया. तो राजा का क्या हो गया, प्राण हो गया, मरा हो गया, बिकेम वेरी एंग्री. बहुत नाराज हुआ. राजा ने जब इस बिल्डर को हैंगिंग के लिए ऑर्डर दिया, he pitied him, है ना, he pitied him. इसके प्रार्थना की, I am not fault of it, मैं इसके लिए दोष नहीं हूँ. The real fault of workman, इसके लिए workman ही fault है. तो the king ordered him to hang the workman. उसने कहा ठीक है, अगर इसका नहीं तो उसका बिल्डर का दोष नहीं है तो वर्कमैन को क्या करो, हैंगिंग करो, लटका. उसके लिए एक नून को क्या करो, उसको लटका. The workman wrong side of it. The workman advised him, I am not responsible for this situation. Who is
का जो ईंटों का जो आकार है उसका साइज है वो गलत है। इस कारण से ईंटों का साइज गलत होने के कारण ये आपका जो आर्क है वो गलत हो रहा है। एंड द किंग became very angry that time and the husband है ना blamed all the man कि भाई इस ब्रिक को बनाने वाला कौन था? मैन ने जो कहा आई एम नॉट रिस्पांसिबल फॉर दिस सिचुएशन। हु इज faulty person? The faulty person is the architect। जो वास्तुकार है वो दोषी है। The architect advised the king you are also responsible for this condition because you ordered me and amendment of it। आपने मुझे इसके संशोधन करने के लिए आदेश दिया है, so you are responsible for this situation। इस स्थिति के लिए आप क्या है? जिम्मेदार है। Who told the king? The architect। The architect told the king you are responsible, so you should hang on the roof। इसलिए इस फंदे के ऊपर आपको क्या करना चाहिए? लटकाना चाहिए, क्योंकि आप इसके लिए दोषी हैं। आपने ही एक अमेंडमेंट के लिए कहा ये चेंज कर दो, वो चेंज कर दो, वो चेंज कर दो। तो एट दैट टाइम फिर उसके बाद क्या हुआ बच्चों? एक फंदा तैयार किया गया कि भाई फंदे के साइज का जो व्यक्ति आएगा, जिसका फंदा एकदम आपका आएगा, वो व्यक्ति ही इसके ऊपर क्या होगा? उसको चढ़ाया जाएगा, सूली को उसी को चढ़ाया जाएगा। इसका नाम का नहीं है। तो नोबडी पर्सन, कोई भी व्यक्ति उस तक नहीं पहुंच सका। केवल ओनली फॉर द किंग वाज फिट ऑफ इट। केवल उस रूल के लिए कौन जिम्मेदार था? राजा ही था, और राजा ही फिट पर्सन था उसके लिए। तो द किंग वाज हैंगिंग, और लटक रहा था किंग, एंड किंग हैंग लटका दिया गया है ना। तो राजा ही वो था जो कैसा था? क्रेजी था, पैलेस था, है ना, जो कैसा था? पीतल माइंडेड था। उस राजा की क्या होगी बच्चों? उसको सूली पर लटका दिया गया, उसको फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। अब who would the next king? अब अगला राजा कौन होगा? जनता सारी बड़ी दुखी थी, तो लोगों ने सोचा कि अगला नेक्स्ट who would be the next king in this kingdom? इस राज्य के अंदर अगला जो कौन होगा? तो भैया सब लोग जितने भी थे, अब लोगों ने क्या किया? उनको से कि those person who would pass under the ark, इस आर्क से जो गुजरेगा, and he would become the king of this kingdom। वही राजा इस राज्य का बनेगा जो उससे पहले निकलेगा। एक idiot person passed under the ark, और वो under the ark से निकला idiot था, सिल्ली था, थोड़ा मूर्ख था। लोगों ने उसको घेर लिया, उसे पूछा आपने who would होना चाहिए या who should be होना चाहिए the next kingdom of the next king of this kingdom? इस राज्य का अगला उत्तराधिकारी कौन होना चाहिए? The Indian person replied that, उस Indian person ने रिप्लाई दिया the melon। the melon, तो melon का मतलब क्या होता है? तरबूज होता है melon, and the melon became the king of this kingdom। और उस राज्य का जो उत्तराधिकारी कौन बन गया? मेलन बन गया, तरबूज बन गया। केवल एक इडियट आदमी के कहने पर उस राज्य का उत्तराधिकारी कौन बन गया? मेलन बन गया। बच्चों इस कविता को, स्टोरी को पढ़कर मुझे एक सैडवेल कविता है उसकी याद आ जाती है, जो आपकी शास्त्रीय या इंग्लिश लिटरेचर के अंदर है, और मेरे ख्याल से उसको ड्रैगन ने लिखा था। ड्रैगन गांधी का कवि है, उसने भी ये कहा था कि राज्य का उत्तराधिकारी कौन होना चाहिए? कि मेरी औलाद में सबसे ज्यादा मूर्ख हो, क्योंकि ये मूर्खों का राजा है, ये मूर्खों का किंगडम है। तो ऐसा राजा यहाँ का होना चाहिए जो कभी ज्ञान की बात नहीं कहता, जो कभी ज्ञान की बात नहीं कहता। तो उस सैडवेल के अंदर राजा का एक पुत्र था, वो इंटेलिजेंट था, वो ज्ञान की बातें करता था, और एक राजा ऐसा था जो ज्ञान की बिल्कुल बात करता ही नहीं था, हमेशा अंधकार में जीता था और अंधकार की बात करता था। तो राजा ने सोचा कि वास्तव में यही बेटा मेरे लिए क्या है, यही बेटा मेरे राज्य के लिए ठीक है। राजा ने उसको अपॉइंटमेंट कर दिया और वो राज्य का उत्तराधिकारी बन गया। क्यों? क्योंकि वो
ordered an art to be a constructive का मतलब होता है निर्मित करना. Who ordered to become an art? The king ordered to become an art to construct. It was a built too low, and the constructor, the builder made it too low. इतनी नीचे थी कि वो हर कोई उससे निकलता था तो उसका सर था ग्राउंड था उससे टच होता था. इतना टू लो, इतना नीचा था. When the king came under it, जब राजा उसके नीचे से गुजरा, his crown was struck and fell down. His crown was struck का मतलब उसका टकराया and fell down. और उसका जो मुकुट था, क्राउन तो मुकुट को बोलते हैं, और वो क्राउन उल्टा हो गया, fell down. The king became very angry and foamed. The king became very angry and foamed when his crown fell on the ground. जब उसका मुकुट गिर गया, he became very angry. And he ordered that the chief of the builder, who is the chief builder of it, and the chief builder would be hanged for this disgrace. Disgrace का मतलब बच्चों होता है अपमान. ओके, disgrace का मतलब क्या होता है? किसी इंसल्ट, अपमान. तो राजा के अपमान के लिए would be hanged. कौन जाएगा? Who would be hanged? The builder would be hanged for this disgrace. इस अपमान के लिए उस बिल्डर को हैंग किया जाएगा, फांसी पर लटकाया जाएगा. हैंग का मतलब होता है फांसी पर लटकाना. The chief of builder pleaded, the chief of builder का pleaded, वो प्रार्थना करने लगा, I am not responsible for this situation. That he was a workman. और करने का ये तो गलती नहीं है वर्कमैन, और वर्कमैन का मेरे को ब्लेम क्यों लगाते हो? उसके ब्लेम लगा दिया ब्रिक के ऊपर कि जो ब्रिक की जो साइज है वो गलत है. और मैंने रिक्वेस्टेड, इट वाज पार्ट ऑफ आर्किटेक्ट. और फिर आर्किटेक्ट ने कहा मैंने क्या किया, आपने अमेंडमेंट के लिए बोला था कि ऐसे बनाओ ऐसे बनाओ, मैंने तो बना दिया. तो राजा बहुत नाराज हुआ. द किंग बिकेम वेरी एंग्री. राजा बहुत नाराज हुआ. ही एट लास्ट, अंत में क्या हुआ? ही ऑर्डर्ड, आदेश दिया, द who is a real culprit का मतलब है गुनाहगार. CULPRIT, culprit का मतलब है गुनाहगार. Who is the culprit of this situation? इस सिचुएशन के लिए कौन गुनाहगार है? तो the king was himself for this culprit. और वो खुद ही क्या था? इसका गुनाहगार था. और वो इस प्रकार से न्यूज तैयार किया गया था. NOOSE, नोज का नाम होता था दोस्तों. तो एक वर्ड NOOSE, न्यूज भी होता है फंदा. NOOSE, न्यूज. और इस प्रकार का फंदा तैयार किया गया. तो राजा उसके अंदर फिट था और राजा उसके अंदर हैंग हो गया तो और लटक गया और वो बिना राजा का किंगडम हो गया. अब राजा ने, लोगों ने सोचा वो वुड द नेक्स्ट किंग, अल्लाह का कौन बनाया जाएगा? तो द इडियट पर्सन वाज अंडर द आर्क एंड द सिक्योरिटी गार्ड, है ना, सिक्योरिटी गार्ड caught him, उसको पकड़ लिया. And asked him who would be या who should be next king of this kingdom. इस राज्य का अगला राजा कौन होना चाहिए? The idiot person decided the melon. तो बच्चों तरबूज ही उस, इसलिए इसका टाइटल क्या है? The taste of the melon king. इसलिए विक्रम सिंह ने इसका टाइटल बहुत ही appropriate किया है. Very suggestive title and very interesting story in 11th class. And you should attain the question very short story, है ना, बहुत ही छोटा सी कहानी है. You should attain 5 and 10 questions. Okay, thank you everybody. Keep practice, keep smile. Okay, next day I will tell you. Thank you.